Hello, good evening students. So today we will discuss mirror formula and magnification. So let's plot a diagram and then we will discuss all the things. Okay. So this is a concave mirror. I am taking example of concave mirror. Okay. You can take anyone, concave or convex. So I am taking concave mirror. So this is polished from this side, outside. This is aperture of the mirror. Okay. So this is a principal axis passing to the pole, center of the mirror, and this is a center of curvature and this is the focus. Okay, so let's suppose that object is placed at this particular point. This is at point C, and the distance here from object to pole is u. It is considered u. So I am writing here this distance is u from the pole of the mirror. Already we have discussed that all the distances are measured from pole of the mirror. So when this object is placed at the point C, then image also formed at C. Okay, इसी point के ऊपर image बनेगी, and when this ray going parallel to the principal axis, after reflection passes from the focus and image will be formed. So let's see where the image will be formed. So you can see here. So it means image will be formed here when one more ray is passing from focus of this mirror, and you can see here image is formed at C. It means if this is object A, this is point B, this will be A dash. So this is the image formed. So image distance is denoted by letter V. So this is V from the pole of the mirror, from this point. Clear? From this point it is V, and object distance is u. So let's write the formula. Formula is 1 by V plus 1 by u is equal to 1 upon f, 1 by f. So we can also write here V is what? Image distance plus 1 upon u is object distance, is equal to 1 by f. What is f? Focal length. So you can see here, this is a reflected ray and this ray is passing from the focus. So when they will meet, that point is C. Means here we will get an image of this object. So we will use here formula for finding the magnification. So this is the image distance, object distance and focal length. So all the distances are measured from pole. So let's see here what will be the distance of the object. So object distance will be, if we will apply the sign convention, already we have discussed sign conventions. So as per the sign convention, u is what here? Object distance. We can write here object distance. This is object distance is minus u. ठीक है, and image distance that is minus v. देखिए पोल से ही सब डिस्टेंस मेजर करेंगे. कॉनकेव के केस में दो केस हैं. कॉनकेव मिरर के दो केस हैं. एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी तो वो इरेक्ट होगी. अगर इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी. इसमें दो ही केस हैं. ठीक है, तो यहां पे देखा हमने कि सारी की सारी डिस्टेंस अगर इस तरफ है, मींस रेज इस तरफ जा रही हैं और हम मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो वो नेगेटिव आएगा. और इसकी इमेज भी इस तरफ बनी है, तो पोल से मेजर करेंगे तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. इसकी फोकल लेंथ वो भी क्या आएगी? नेगेटिव. तो फोकल लेंथ देखिए आप, ये फोकल लेंथ है इसकी, फ्रॉम दिस पॉइंट एफ पॉइंट टू पी, पोल ऑफ द मिरर. दिस इज अ फोकल लेंथ. ठीक है, सो दिस फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव. सो वी कैन राइट हियर फोकल लेंथ दैट इज ऑल्सो माइनस एफ. क्लियर? इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिए आप, जैसे मैंने आपको लिखा भी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. अगर आपके पास फोकल लेंथ नहीं दी है, अगर न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे हैं और फोकल लेंथ नहीं दी है, तो इसका मतलब रेडियस दिया होगा. ठीक है,
तो आपको पता है कि देखिए यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ के बीच की जो डिस्टेंस और फोकल टू जो पोल है आपके पास, फोकल लेंथ टू पोल, फोकस पॉइंट टू पोल जो है डिस्टेंस वो बराबर है। तो इसका मतलब आपके पास f प्लस एफ इज इक्वल टू 2f होता है। इसका मतलब f प्लस एफ इज इक्वल टू 2f, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस। मींस यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस दैट इज r। क्लियर? तो आपके पास जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, r/2। तो उस टाइम आप फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज f हियर, r/2। तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। तो आपके पास एक और नया फॉर्मूला आपको मिल गया। एक फॉर्मूला ये आपके पास, यू कैन सी दिस फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, यू हैविंग न्यू फॉर्मूला दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। सो साइन कन्वेंशन यूज करके आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस मैग्निफिकेशन। Magnification is equal to height of the image to the height of the object. Height of the object is formed by the spherical mirror depends upon the two things. One is the nature of the spherical mirror. The nature of the spherical mirror बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्फेरिकल मिरर। और दूसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, आपने फोकस के ऊपर रखा हुआ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल मिरर है। अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल की एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट को जनरली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसकी जो हाइट है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर इसकी इमेज मान लीजिए निचली साइड आई हुई ऐसी इमेज जो है डाउन साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज टेकन एज नेगेटिव। और जो अगर इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही हैं और आप डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस जो होगी आपके पास नेगेटिव होगी ऑब्जेक्ट की। और आपकी जो इमेज बनी, ठीक है, तो इसकी हाइट हम नेगेटिव लेते हैं डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी जो इमेज डिस्टेंस दैट इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव। इमेज को हम v से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस इज रिटन बाय v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिटन बाय u। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय u। क्लियर? और देखिए अभी, सो वी कैन राइट दिस मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। So this magnification is also written as h dash by h is equal to minus v upon u। आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड रखा हुआ है इसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे हम, और इमेज जो है उसकी हाइट निचली साइड है वो वी विल टेक नेगेटिव। और जो इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों नेगेटिव आएंगे, इसलिए हमने क्या किया, ये ए वाला जो माइनस है इस तरफ रख दिया। इसलिए आपके पास जो फॉर्मूला बन गया दैट इज m is equal to h dash by h is equal to minus v by u। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मिरर के केस में, लेंस के केस में ये अपोजिट हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, लेकिन मिरर के केस में ये मैग्निफिकेशन जो है मिरर के केस में ये आएगी h dash by h। इन केस ऑफ मिरर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। क्लियर? अब मैग्निफिकेशन जो है वो अगर आपके पास नेगेटिव साइन आया हुआ है, नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन, नेगेटिव साइन इन द नेगेटिव साइन indicates negative sign indicates image formed is real and inverted। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर इमेज इन्वर्टेड हो तो वो रियल है, मतलब रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होगी। और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है मैग्निफिकेशन में, दैट इज इमेज formed is virtual and erect। मीन्स इमेज उस तरफ बनेगी इसके बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अगर हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज जो है उस तरफ बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन जो आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होंगी,
जो इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर आपके पास ये नेगेटिव आ रही है, इमेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ये दोनों केस आते हैं। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। देखिए इधर भी इमेज बनेगी और इस तरफ भी इमेज बनेगी, इट डिपेंड्स अपॉन कॉनकेव मिरर फॉर्म बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैग्निफिकेशंस, मींस जो कॉनकेव मिरर है उसके पास नेगेटिव मैग्निफिकेशन भी है और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इन केस ऑफ व्हेन द इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन वी कैन से magnification is positive. So concave mirror form both positive and negative magnifications. And in case of convex mirror, if we will talk about the convex mirror, so convex mirror form virtual and erect image. जो convex mirror है आपके पास वो virtual और erect image हमेशा, इसलिए इसकी जो magnification होगी, magnification is पॉजिटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन है दैट इज पॉजिटिव। एक और बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इफ एच डैश इज, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी हियर, इफ एच डैश इज ग्रेटर देन एच, मीन्स कि अगर आपके पास जो इमेज है इसका साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, तब आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होगी, विल बी ग्रेटर देन 1। आप देखिए यहाँ से अगर ये ज़्यादा है, इमेज साइज ज़्यादा आएगा तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा आएगी। मैग्निफिकेशन मीन्स कि इट इज़ द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वैल्यू आएगी आपके पास डिवाइड करके, दैट इज द मैग्निफिकेशन। क्लियर? अगर आपके पास एच डैश जो है लेस देन एच है, अगर जो आपके पास इमेज आएगी लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या आएगी? लेस देन 1। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर भी आ सकती है, मीन्स इफ द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, एच डैश इज इक्वल टू एच, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज बोथ आर इक्वल। जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो इमेज इसी के नीचे आ जाएगी और सेम साइज की इमेज आएगी। आप एक और बात देखिए, तो आप यहाँ देखिए, आप प्लेन मिरर का एग्जांपल देखिए। प्लेन मिरर में हमेशा आप आगे जाओ या पीछे जाओ आपकी हाइट सेम रहेगी। आप आगे आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपकी जो इमेज है वो आगे आएगी, आगे पीछे जाएंगे तो इमेज भी पीछे जा रही है। क्लियर? अभी आप कैमरे में देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो में देख सकते हैं आप। तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज 1। ये आपके नॉलेज के लिए कि प्लेन मिरर में क्या मैग्निफिकेशन आएगी, प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन है दैट इज ऑलवेज +1, पॉजिटिव आएगी और वो हमेशा 1 आएगी, क्योंकि प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो एकदम बराबर आएंगे। क्लियर? सो वी कैन राइट मोर फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस मैग्निफिकेशन। आप देखिए, आप यहाँ पे एक और मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप देखो, ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अगर आप इसको और फॉर्म में लिखना चाहें, ये जो आपके पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज एच डैश बाई एच that is equal to minus v upon u. This is the formula of magnification in case of mirror, convex and concave mirror. Okay, अगर आप इसको फोकल लेंथ के केस में भी लिखना चाहेंगे, मीन्स आपके पास u v और f के केस में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला या तो ड्राइव कर दो, मैं ड्राइव कर देता हूं उसके लिए फॉर्मूला। आप देखिए, इसके लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं। जैसे आप वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, multiplying both side by v, multiplying both side by v। देखिए आप v से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ से v से मल्टीप्लाई किया, उस तरफ भी v से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, यह आएगा v बाई v प्लस v बाई u इज इक्वल टू v बाई f। v से v कैंसिल होगा आपके पास, यू हैव ओनली 1 प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v बाई f। आपको फाइंड आउट करना है v बाई u, मैग्निफिकेशन वैल्यू है माइनस v बाई u, तो आपको इन टर्म्स ऑफ f ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए v बाई u इज इक्वल टू v बाई f माइनस
1, इसको मैं उस तरफ लेके गया इस टर्म को, तो देखिए वी बाई यू इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, वी माइनस एफ अपॉन एफ। क्लियर। अब ये आपके पास वी बाई यू है और ये माइनस वी बाई यू और ये प्लस है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, वी बाई यू इज इक्वल टू, मीन्स आपको माइनस वी बाई यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी माइनस एफ बाई एफ। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, देखिए आप, ये वैल्यू आपके पास आ गई, अब ये आ गया एफ माइनस वी बाई एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी वैल्यू आ गई फॉर्मूले की, ये जो आपके पास फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एफ, दैट इज एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब मैं, ये तो था v के केस में, v और f के केस में, अब मैं u के केस में इसको फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा। देखिए आप, u के केस में ये फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, माइनस वी बाई यू की वैल्यू f और u के केस में फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोबारा से वही फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाइंग both the side by u, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई u, तो देखिए u अपॉन v प्लस u बाई u इज इक्वल टू u अपॉन f। अब u से u कैंसिल होगा, आपके पास u अपॉन v दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू u अपॉन f। आपको फाइंड आउट करना है v अपॉन u माइनस के साथ, वो भी ठीक है। पहले आप इसको ये करिए, एलसीएम ले लो, यहाँ पे इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे, u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, u बाई वी इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन एफ। पहले तो इसको रिवर्स करिए, दिस इज v बाई यू को हम लिख सकते हैं, ये आएगा f अपॉन u माइनस एफ। अब आपको चाहिए माइनस v बाई यू, तो देखिए क्या करेंगे हम, माइनस साइन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस v बाई यू इज इक्वल टू माइनस आपके पास f अब बाई, ये यहां पे लिखते हैं f माइनस यू। जो आपके पास माइनस साइन था यहां पे, ये देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, क्लियर। सो इट बिकम f बाई एफ माइनस यू। इसका मतलब जो वैल्यू है आपके पास v बाई माइनस v बाई यू की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू f बाई एफ माइनस यू। वन मोर फॉर्मूला दैट इज f बाई एफ माइनस यू। तो आप देख सकते हैं आपके पास मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले आ गए, दैट इज साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, f माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वन मोर फॉर्मूला दैट इज f अपॉन एफ माइनस u। तो ये v के केस में और ये u के केस में, तो आपके पास ये आ गया फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं, क्लियर। नाउ सी आई हैव रिटन वन क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, दिखा देखिए 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, यहाँ ये देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो ये डिस्टेंस होगी माइनस यू, तो आपके पास माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया। और कॉनकेव मिरर बोला हुआ है, तो क्या होगा, ये सब के सब यहाँ पे नेगेटिव आएंगे जब तक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप फोकल लेंथ देखिए 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या आपके पास माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ भी इस तरफ है, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ है, ठीक है। अब आपको इमेज देखने की, इमेज किस तरफ बनेगी हमें पता नहीं है, हम ये इमेज का हमें पता नहीं है अभी कैसी बनेगी, डिपेंड्स अपॉन द कि कौन सी प्लेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ और कैसी इमेज बनती है, तो हमें रिजल्ट से पता चलेगा इससे। तो वी नो दैट आपको इमेज फाइंड आउट करनी है, वी नो दैट मिरर फॉर्मूला, वी नो दैट मिरर फॉर्मूला दैट इज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। आपको 1 बाई वी मतलब v निकालना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ देखिए 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, देखिए एफ इज व्हाट माइनस 10, फिर फॉर्मूले में माइनस क्या है u,
अब u की वैल्यू है -30, तो माइनस माइनस हो गया आपके प्लस 30, ये माइनस में है, ये प्लस हो गया क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में 1/v 1/f माइनस 1/u। तो ये देखिए अब 1/f f इज व्हाट -10, -10 कर दिया मैंने, और माइनस फॉर्मूले में माइनस और साथ में 1/u, तो प्लस हो गया। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखिए और माइनस वाली को इस तरफ लिखिए। सो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 30, तो ये 1 माइनस 10 3 = 30, आपके पास आ गया 1/v इज इक्वल टू -2/30, 2/30, तो इससे कट गया, आपके पास आ गया -1/15। इसका मतलब आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखिए आप, इसका मतलब जो इमेज आई वो इस तरफ है, और इमेज कैसी होगी, नेगेटिव इमेज आएगी, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। और 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इट इज एज पर द रूल, इफ द image form is negative, then the image is real and inverted, ठीक है, and it is at a distance of 15 सेंटीमीटर from the pole। मतलब इस तरफ बनी हुई है, माइनस साइन है, मतलब इस तरफ बने, कॉनकेव मिरर को ले रहे हैं हम, तो आपके पास आंसर है v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मींस अगर ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट जो आपके पास एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, मींस u इज इक्वल टू गिवन, आपके पास जो गिवन है दैट इज u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से मेजर करते हैं, तो ये इस तरफ नेगेटिव। अब आगे लिखा है कि इट फॉर्म्स ए रियल इमेज, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब v, आप ये बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू 4 टाइम्स, कितना, 4 टाइम्स द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पे we know the formula of magnification, that is h dash by h is equal to -v/u। तो हमारे पास h dash by h तो है नहीं, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ क्या है, -v/u, और हमें फाइंड आउट करना है v इज इक्वल टू, अब देखिए इस फॉर्मूले से देखेंगे तो v इज इक्वल टू कितना, mu विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस है इस तरफ तो उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपको v फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू माइनस, और m आपके पास क्या है, मैग्निफिकेशन आपके पास देखिए, मैग्निफिकेशन इज 4 टाइम्स, मैग्निफिकेशन क्या है, रियल इमेज की नेगेटिव। इसका मतलब आप क्या पुट करेंगे, -4 इंटू इमेज दैट इज -16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपके पास माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस -64 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके पास v की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -64 सेंटीमीटर। तो u आपको पता है, v आपको पता है, और आगे पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। आप देखिए ये तो पता चल गया कि रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, -64 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और ऑब्जेक्ट था -16 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो इमेज मतलब लार्जर है, एंड लार्ज साइज की इमेज बनी, ठीक है, और इन्वर्टेड है, रियल है। अब आपको पूछा है कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर के केस में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू u की वैल्यू देखिए क्या है, 1/v, v की वैल्यू -1/64 प्लस 1/u दैट इज -1/16, ठीक है, माइनस में। तो आप ऐसा करिए 1/f इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/64 प्लस 1/16, ठीक है, इजी हो जाएगा करने के लिए। सो 1/f इज इक्वल टू -64, इसका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 16 4 = 64, तो आपके पास क्या आ गया ये 1/f इज इक्वल टू -1 प्लस 4/64, ठीक है, क्लियर। तो आगे कर सकते हैं इसको हम, ये देखिए इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू -5/64,
इसका मतलब f की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -64/5. इट मीन्स f इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेबल 5 का 12 5 जा 60 और 4 बच गया 5 8 जा 40. सो f इज इक्वल टू -12.8 सेंटीमीटर. क्लियर. तो इस तरीके से आपने मैग्निफिकेशन भी यूज कर लिया. कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे यूज करते हैं मैग्निफिकेशन को, और फोकल लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली. तो दैट इज -12.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. ओनली वी विल सॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ. क्लियर.